A fantastic morning, evening, and afternoon to all my dear students. Today we are going to start a new poem, which is a wonderful poem and obviously one of my favorite, A Thing of Beauty. It is written by John Keats. First of all, introduction to the poet. John Keats was an English romantic poet known for his vivid imagery, rich word choice, and deep emotional expression. Despite his short life, Keats produced a remarkable body of work that has had a lasting influence on English literature. Trained as a surgeon, Keats decided to devote himself entirely to the poetry. Keats is celebrated for his odes. What is ode? Ode is a poem which is dedicated to a person or an event. For example, Ode to a Nightingale, it means this poem is dedicated to a nightingale specially. Ode on a Grecian urn and Ode to Autumn, which reflect his fascination with beauty and transience. His poetry often explores themes such as beauty, nature, love, and mortality, and these are key features of romantic poetry of that time. Introduction to the poem. A Thing of Beauty is an excerpt from John Keats' longer poem Endymion. एंडीमियन से ली गई है ये पोएम, एक्सट्रैक्ट है जो कि 1818 में पब्लिश हुई थी. एंडीमियन इज़ बेस्ड ऑन अ ग्रीक मिथ. एक ग्रीक मिथ पे बेस्ड है ये जो लॉन्ग पोएम है एंडीमियन, एक ग्रीक मिथ पे बेस्ड है वेयर एंडीमियन अ शेफर्ड falls in love with the moon goddess Cynthia. His poem reflects Keats' romantic ideals, particularly his belief in the eternal nature of beauty. Means beauty is eternal, never ending. Beauty is never ending, eternal. The poem celebrates the idea that beauty is a perpetual source of joy. What is the idea the poem throws? That beauty is a perpetual, yani constant source of joy and comfort. Keats emphasizes that beautiful things provide an escape from the sorrows and hardship of life. Means beautiful things, they provide us an escape. They save us from our sadness, sorrow, hardship, difficulties of life, and they leave a lasting impact. They leave a never-ending impact on our souls. Keats illustrates beauty through natural elements. अब उसने इस पोएम में नेचुरल एलिमेंट्स का एग्जाम्पल्स दिया है. ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक ट्रीज, फ्लावर्स एंड स्ट्रीम्स विच सिम्बलाइज प्योरिटी, पीस एंड रेजुवेनेशन. रेजुवेनेशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को फिर से ज़िंदा करना. Observe the given picture and list out the beautiful things that you can see here. See the beautiful sunrise, see the beautiful rainbows, see the beautiful trees, flowers, stream. This is called rill, stream, water stream, mountain. So everything is beautiful in this picture and you can list out easily some elements. Next is a vocabulary. फर्स्ट इज़ बावर. बावर मीनिंग अ शेडी प्लीजेंट प्लेस, यानी अ शेड, जंगल में जहाँ पर 2 या 3 ट्रीज़ मिल रहे हों उसके नीचे जो शेडी प्लेस बन जाता है, दैट इज़ बावर. मोरो मीनिंग द नेक्स्ट डे और टुमारो, द नेक्स्ट डे हमको मोरो कहेंगे. रीथिंग मीन्स ट्विस्टिंग, सर्कुलर वे में और स्पाइरल वे में किसी चीज़ को ट्विस्ट करते हुए ले जाना, दैट इज़ कॉल्ड रीथिंग. Despondence, a state of low spirit, यानी despair, hopelessness, disappointment. Dearth, lack of something, scarcity of something. Pall, a dark cloud or covering of smoke, किसी चीज़ की covering, that is called pall. rills, small streams of water, जैसा कि हमने अभी पिक्चर में देखा जो वाटर स्ट्रीम चल रही थी, दैट इज़ कॉल्ड रिल्स. कवर्ड मीन्स अ थिकेट इन विच गेम कैन हाइड, अ कवरिंग और शेल्टर. कवर्ड यानी एक कवरिंग, शेल्टर. यहाँ गेम मीन्स शिकार जो हाइड हो सके. थिकेट यानी बुश, एक ऐसा बुश जिसमें कि कोई भी शिकार छुप सके, या हम इसे कह सकते हैं कवर्ड मीन्स अ कवरिंग ऑफ समथिंग. ब्रेक, ब्रेक का मतलब ये अ थिक मास ऑफ फर्न. फर्न इज़ अ काइंड ऑफ प्लांट एंड फर्न प्लांट की जो बुश है, थिक बुश, उसे ब्रेक कहते हैं. ग्रैंड्योर मीन्स स्प्लेंडर और इम्प्रेसिवनेस, रॉयलनेस ऑफ समथिंग.
डूम्स डेस्टिनीज, डूम्स मीन्स फेट्स और डेस्टिनीज, जो कि इनएविटेबल है, आएगी ही आएगी डेस्टिनी। इमॉर्टल मीन्स लिविंग फॉर एवर। ब्रिंक मीन्स द एक्सट्रीम एज ऑफ लैंड बिफोर वाटर स्टार्ट्स, यानी एज, ब्रिंक मीन्स एज। मेन पॉइंट्स ऑफ द पोएम, ब्यूटी इज़ इटर्नल, यानी ब्यूटी नेवर एंडिंग है, अनएंडिंग होती है ब्यूटी, इटर्नल होती है। एंड ब्रिंग्स एवर लास्टिंग जॉय, इट प्रोवाइड्स एन एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, यानी हम अपनी लाइफ में जितने भी दुखी हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, हम डिस्पेयर फील कर रहे हैं, होपलेसनेस फील कर रहे हैं, उन सब से हमें ब्यूटीफुल थिंग्स बचा सकती हैं। Keats emphasizes the importance of appreciating beauty in nature and art. वो ब्यूटी को अप्रिशिएट करने की इम्पॉर्टेंस बता रहे हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स को अप्रिशिएट करना हमारे लिए कितना ज़रूरी है, वो हमारी सोल पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट डालता है। द पोएम सजेस्ट दैट ब्यूटी एक्ट्स एज अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ कंफर्ट and peace. Beauty acts as constant source of comfort and peace. Beauty is described as a bower quiet. जैसे पेड़ की छाया में बैठ के हमें शांति मिलती है, क्वाइटनेस मिलती है, ऐसे ही ब्यूटीफुल थिंग्स को जब हम देखते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें ऐसी ही शांति मिलती है। दैट ऑफर्स रेस्ट एंड रिजुविनेशन, जिससे हम रिजुविनेट हो जाते हैं, हम फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं। Beauty in nature serves as a sanctuary that shields us from life's sufferings. ब्यूटी जो नेचुरल ब्यूटी है वो हमें लाइफ की सफरिंग से भी शील्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है। कीट्स यूजेस पावरफुल इमेजरी टू क्रिएट अ विविड कनेक्शन बिटवीन ब्यूटी एंड सोलनेस। हम इंसानों और ब्यूटी के बीच में कनेक्शन क्या है, हमारी सोल और ब्यूटी के बीच में कनेक्शन क्या है, वो पीस और ब्यूटी के बीच में कनेक्शन क्या है, वो सब दिखाने के लिए कीट्स ने बहुत अच्छी इमेजरी यूज़ की है इस पोएम में। द पोएट पोर्ट्रेज ब्यूटी एज टाइमलेस विद अ डिवाइन एसेंस दैट नरिशेज द सोल, हमारी सोल को नरिश करती है ब्यूटी। सो देयर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स, अ सनराइज, ब्लूमिंग फ्लावर्स, starry night, a calm river, a snow-capped mountain, a rainbow, a child's laughter. Even a child's laughter is a beautiful thing in this world. A work of art, a field of wild flowers, a loving gesture, a loving emotion. So these are some beautiful things we can feel, we can experience, we can see. Now come with the text, A Thing of Beauty. We have read about the poet and the poem. What pleasure does a beautiful thing give us? तो इस पोएम का मेन इशू क्या है, इस पोएम में मेन थीम क्या है, कि पोएट बताना चाह रहे हैं कि ब्यूटीफुल थिंग्स हमें क्या प्लेजर दे सकती हैं। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग ब्यूटीफुल थिंग्स? आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग? क्या ब्यूटीफुल थिंग्स को ट्रेजर करके रखना चाहिए, जैसे हम खजाने को संभाल के रखते हैं, खजाने की तरह ब्यूटीफुल थिंग्स को भी ट्रेजर करके रखना चाहिए क्या? Yes, a thing of beauty is a joy forever. The poet starts his poem with a wonderful line कि एक thing of beauty, यानी कोई भी beautiful चीज़ is a joy forever, हमेशा के लिए एक joyful चीज़ होती है वो। Its loveliness increases, जो beautiful things हैं उनकी loveliness हमेशा increase होती है, उनकी prettiness, उनकी beauty हमेशा increase होती है, कभी भी decrease नहीं होती। It will never pass into nothingness. नथिंगनेस मीन्स ज़ीरो या लॉस्ट, कभी भी लॉस्ट नहीं होती, उनकी लवलीनेस हमेशा इंक्रीज होती है। बट इट विल कीप अ बावर क्वाइट, बावर मीन्स शेड, बावर मीन्स शेड, ये हमारे लिए एक शेड की तरह होती है, क्वाइट शेड। एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स। यहाँ पॉइंट बता रहे हैं कि क्या क्या फ़ायदा होता है हमें ब्यूटीफुल चीज़ों से, जो इस नेचर ने हमें ब्यूटीफुल चीज़ें दे रखी है, चाहे वो सुनने की ब्यूटीफुल थिंग्स हों, या देखने के लिए हों, या कहने के लिए हों, कुछ भी हो सकती है। एक स्टोरी भी बड़ी ब्यूटीफुल हो सकती है, एक पोएम भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है, और एक सीन भी बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। ब्यूटी किसी भी चीज़ में हो सकती है। तो पोएट कह रहे हैं कि उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इट विल कीप अ बावर क्वाइट, ये हमें एक शेड देती है क्वाइट, जैसे पेड़ों की बावर में बैठ के हमें बड़ी शांति महसूस होती है, बड़ी ठंडक महसूस होती है, ऐसे ही ब्यूटीफुल चीज़ों को जब हम अप्रिशिएट करते हैं तो ऐसा ही हमें फील होता है। एंड इट गिव्स अ स्लीप
फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और ब्यूटीफुल थिंग्स हमें स्लीप देती हैं जो कि स्वीट ड्रीम्स से फुल होती हैं। एंड हेल्थ, हमें हेल्थ देती हैं। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ब्रीदिंग यानी चैन की सांस देती है। क्वाइट ब्रीदिंग यानी कि पीस देती है हमें, पीसफुल एनवायरनमेंट देती है, पीस फील होती है हमें जब भी हम किसी ब्यूटीफुल थिंग को अप्रिशिएट करते हैं। देयरफॉर ऑन एवरी मोरो, इसीलिए, क्योंकि इतनी सारी बेनिफिट्स हैं ब्यूटीफुल थिंग्स के, इसीलिए ऑन एवरी मोरो यानी ऑन एवरी नेक्स्ट डे वी आर रीथिंग यानी सर्कुलर मोशन में किसी चीज़ को बांधना। वी आर रीथिंग अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू दी अर्थ। हम सर्कुलर मोशन में ट्विस्ट कर रहे हैं एक फ्लावरी बैंड को जो कि हमें अर्थ से बांध रहा है। कहने का मतलब है कि ब्यूटीफुल थिंग्स, इस नेचर में जो ब्यूटीफुल थिंग्स है वो हमें अर्थ के साथ बांध रही हैं। हम हर दिन अपने आप को अर्थ के साथ बांध रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल थिंग्स। अ फ्लावरी बैंड यहाँ पे मेटाफर है ब्यूटीफुल थिंग्स का, ब्यूटीफुल थिंग्स। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस हमने पढ़ा है, मतलब डिस्पेयर, होपलेसनेस। अब यहाँ बता रहे हैं कि ह्यूमन नेचर क्या है, हम असलियत में किस सिचुएशन में पड़े हुए हैं ह्यूमंस। हम डिस्पेयर, होपलेसनेस में हैं। ऑफ द इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स मीन्स डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स यानी गुडनेस, गुड क्वालिटीज़। डर्थ यानी कमी, यानी हमारे अंदर एक इनह्यूमैनिटी है, एक गुडनेस की कमी है। एंड ऑफ द ग्लूमी डेज, हम ज़्यादातर ग्लूमी डेज यानी सैड डेज, ग्लूमी मीन्स सैड और सॉरो, सैड डेज स्पेंड करते हैं। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, यानी हमारे जो वेज हैं वो अनहेल्दी और डार्कन्ड हैं यानी गलत हैं। ज़्यादातर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके अनहेल्दी वेज ऑफ लिविंग होते हैं ना, डार्कन्ड वेज होते हैं, गलत रास्तों से हम चीज़ों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। मेड फॉर आवर सर्चिंग्स। इन स्पाइट ऑफ ऑल these नेगेटिव थिंग्स, इन स्पाइट ऑफ ऑल, यहाँ क्यों आया है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स। व्हाट आर नेगेटिव थिंग्स? डिस्पेयर, इनह्यूमन डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, हमारे अंदर नोबल नेचर्स की कमी है, हमारे डेज सैड हैं और हम अनहेल्दी और रॉन्ग वेज हम अपनाते हैं अपनी किसी भी चीज़ को सर्च करने के लिए। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। एक शेप ऑफ ब्यूटी है, यानी एक कोई ब्यूटीफुल थिंग है जो कि हमारी डार्क स्पिरिट पे से, हमारी डार्क सोल पे से उस पॉल को हटाती है। पॉल मीन्स एक कवर, क्लाउड्स का कवर होता है ना, ब्लैक क्लाउड्स का कवर होता है, उसे पॉल कहते हैं, कवरिंग को पॉल कहते हैं। तो उस कवरिंग को, ब्लैक कवरिंग को हमारी स्पिरिट्स पे से हटा देती है एक ब्यूटीफुल थिंग। Now the poet is giving some examples of some beautiful things in nature, such the sun, the moon, trees old and young, old trees and young trees sprouting a shady boon for simple sheep. जो trees होते हैं वो एक boon है, किसके लिए? Simple sheep के लिए. And such are daffodils. Daffodils is a kind of flower. ये देखो daffodil flower है. डैफोडिल्स विद ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। डैफोडिल्स देखो कितने सुंदर लगते हैं अपने ग्रीन वर्ल्ड में जहाँ वो रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स हमने अभी उस पिक्चर में देखा था, वाटर स्ट्रीम, बिल्कुल पतली वाटर स्ट्रीम जो फॉरेस्ट के बीच में से निकल रही होती है, किसी फील्ड के बीच में से निकल रही होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिल। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड, जो उनके लिए एक कूलिंग कवर्ड है, मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो कि हॉट सीजन में उन्हें एक कवर्ड यानी कोई थिक चीज़ जो किसी को प्रोटेक्शन दे, कवर करे या हाइड करे किसी चीज़ को, दैट इज़ कवर्ड। तो जो क्लियर रिल्स हैं वो उन्हें कवरिंग दे रहे हैं अगेंस्ट द हॉट सीजन। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अब ब्रेक क्या है? ब्रेक इज़ अ फर्न, यहाँ पे दिया भी हुआ है, थिक मास ऑफ फर्न, ये है फर्न की बुशेज़, मोटी मोटी बुशेज़ होती हैं फॉरेस्ट में जिनके पीछे अगर कोई छुप जाए तो वो दिखता नहीं है, कवर हो जाता है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जो फॉरेस्ट में जो ब्रेक हैं ये इस तरह के बुशेज़ हैं।
रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, और उन पर जो मस्क रोज़ ब्लूम हो रहे हैं, ये मस्क रोज़ फ्लावर हैं, मस्क रोज़ उन पे ब्लूम हो रहे हैं, ऐसे स्प्रिंकल हो रहे हैं, पूरा ग्रीन ग्रीन बुश है और उस पर कहीं कहीं आपको मस्क रोज़ के फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं. सो दिस सीन इज़ सो ब्यूटिफुल एंड सच टू इज़ द ग्रैंडर ऑफ द डूम्स. ग्रैंडर यानी रॉयलिटी. किसकी रॉयलिटी? डूम्स की. डूम्स यानी डेस्टिनी. अब किन लोगों की डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, किन लोगों के फेट की बात कर रहे हैं? वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. माइटी डेड मीन्स वो लोग जो शक्तिशाली थे, बहादुर थे अपने ज़माने में, लेकिन वो अब नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई या तो युद्ध में मर गए वो जो वॉरियर्स थे. तो वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड. जो डूम्स, अब पोइट उन डूम्स की बात कर रहा है, उन लोगों के फेट की बात कर रहा है, डेस्टिनी की बात कर रहा है जो हम इमेजिन कर सकते हैं. तो उनकी वो क्या है, एक तरह से ग्रैंड्योर है, स्प्लेंडर्ड है, रॉयल है, उनकी जो मौत है वो रॉयल है. ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड. मतलब जो भी लवली टेल्स, जो भी लवली स्टोरीज़ हमने उनके बारे में सुनी हुई है या पढ़ी हुई है. एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक. उन्हें सुनना एक एंडलेस फाउंटेन यानी अमृत का एक फाउंटेन है हमारे लिए. जैसे इमॉर्टल ड्रिंक यानी अमृत, अमृत का एक फाउंटेन है. पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम द हेवन्स ब्रिंक, जो कि हेवन के ब्रिंक से यानी हेवन के एज से हम पर डाला जा रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स आर सो ब्यूटिफुल एंड सो सूदिंग टू आवर सोल.